question if any differential coefficient involved in trigonometric terms are equals to go log exponential, then what we have to do, everything we have seen. Now another 2 exercise is not in syllabus beta, so that means this time they have deleted, that is 9.2 general solution, and then next come to which one, formation. Both are not in 9.2 and 9.3. this time they have deleted. So next we are starting variable separable. What is variable separable? Because for doing step number 1, so I am giving for note here, that is for variable a variable separable. So what is variable separable? Note I am giving step number 1, collect all x and dx, collect all x and dx, x and dx one side, dy and dy, y terms, y x matlab x terms, y terms and dx, y terms and dy, another side, okay, another side. Step number 2, do integration, take or otherwise do integration both side, do integration both side, so that we get general solution. So general solution क्या होता है, उसका introduction तो देने पड़ेगा, वो मैं दे देती, so that we get general solution, we get general solution. So this we are going to see today, that is variable separable. So what is general solution, what is particular solution? So let me give example. For example, so I am giving example of general and particular solution. Suppose d square y by dx square, so that is equal to 2x. They have given like this, or otherwise dy by dx, simple relative, first order we have. So dy by dx is equal to find the general solution. Find क्या है question में आ गया, general solution. Just for one more question. So solution means you have to solve the differential equation, means you have to find the value of x or value of y. That is called the general solution. For this what we will do, that is equal to 2x into dx. Now take it integration, because without the dx we cannot do integration, that's why I have taken dx that side. Now integral and b is opposite. Y equals to x square plus c. So that is equal to 2x square by 2. So 2 cancel, x square plus क्या है, so c. So c is where c is arbitrary constant, minus infinity to plus infinity के बीच में कोई भी value आ सकता है. That's why we say this is called क्या बोलते हैं, general solution. That's why we say this is called general solution. This is called general solution. एक note भी दूंगी आपके पास. So for example, suppose if I take another example, so general solution means we will add one constant here, arbitrary constant, that is a plus c, that is called a general solution. अब another example, let me give another example. Suppose d square y by dx square, यही same question, that is equal to 2x आ गया. So now what we have to do? So now how to find the general solution? एक conclusion दूंगी, that's why I am taking this example also. This d square y by dx square can be written as a d by dx of, we can write dy by dx. So that is equal to 2x. See, if I need the value of y or x, I have to remove this differentiation. So 2 times I have to do integration so that I can smoothly remove this differentiation symbol. Now d of that, I'm keeping this as d here, dy by dx. So that is equal to 2x into dx. Now take it integration, same question I am taking but second order. So now integral d cancel, so we will get it to dy by dx, that is equal to 2x square by 2, so that x square plus c. Okay, fine, or otherwise c1 take it. Okay, this is, now again I have to do integration, then only I will get value of y. So again I am doing variable separable, that is called variable separable beta. So now into dx, take integration both sides. Take integration both sides, so what we will get it, y equal to, that is x cube by 3 plus c1x plus I am adding another 1 2. Okay, so now see, this is called the general solution. So what is the conclusion I have given? I kept in front of you 2 examples here. So let me give, suppose initial value given means this originally this curve is passing through, जो भी curve आपके पास आए,
फॉर एग्जाम्पल इसमें ले लेती हूँ, सपोज दिस कर्व इज पासिंग थ्रू 1 and 2, इट गिवन क्वेश्चन में दे रखा होगा dy by dx equal to 2x, find the general solution. Also find if curve passing through, बेटा क्वेश्चन को ठीक से लिख लेना, passing through 1, 2. सो आपके सामने ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, यही सेम कर्व, ये होता है कर्व, जनरल कर्व होता है बेटा, ये आपका स्लोप था, स्लोप को इंटीग्रेट किया, वी आर गेटिंग जनरल कर्व. ये जो कर्व है क्या दे रखा है, ऑल्सो फाइंड इफ कर्व पासिंग थ्रू 1, 2. सो अब ये 1, 2 के थ्रू पास करेंगे, इसका मतलब x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 2 होगा, तो यहाँ पे x की जगह से 1 रखो, y की जगह से 2 रखो, सो 2 = 1 + c. दिस इम्प्लाइज c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यहाँ पे ये पूरा ढंग से लिख लेना बेटा. सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सो दैट इज c की जगह से हम 1 रखेंगे, तो y = दैट मीन्स आपका पर्टिकुलर कर्व जो ओरिजिनल कर्व था वो कर्व आ गया. दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो इन केस क्वेश्चन के अंदर in case initial value, this is called initial value. In case initial value given हो, substitute initial value in general curve, general solution, so that we will get arbitrary value. So arbitrary value को replace करोगे, that is called particular solution. अब आपके पास एग्जाम्पल दिया बेटा once again. सो ये फर्स्ट ऑर्डर का दिया, हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आए. इसी जनरल सॉल्यूशन के अंदर हमने वो इनिशियल वैल्यू रखा था, वी आर गेटिंग आर्बिट्री वैल्यू, सो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया. अनदर एग्जांपल आई हैव टेकन हियर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो उसको हमने 2 बार इंटीग्रेट किया, सो हमारे पास आ गया ये रहा आपका GS, दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं. सो एनीबडी कैन गिव कंक्लूजन. दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या समझ में आया बच्चे? Given differential equation, this is differential equation and this is solution, general solution, and this is a particular solution. As per this is a differential equation, second order, and this is your general solution. So do you have any suggestion, any conclusion through this example? हम बेसिकली जब हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं तो वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है मैम, क्योंकि सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है. एंड मैम अगर हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट दिया होता है कि मतलब इस पॉइंट पे निकालो कि क्या होगा, तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है. Yes बेटा, well done. But what is the link between this differential equation and general solution? This differential equation, ये रहा आपके सामने differential equation, ये रहा आपके सामने general solution. ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जनरल सॉल्यूशन ये रहा. इसमें कोई कंक्लूजन आपको दिख रहा है? इन दोनों का लिंक कुछ पता चल रहा है आपको? मैम इंटीग्रेट किया हुआ है. हाँ बच्चे, इंटीग्रेट करके ही रिजल्ट आएगा. अब देखो बेटा क्या लिंक है. in any differential equation, order of differential equation equal to number of that is order of differential equation equal to number of arbitrary constant in general solution. In case order of differential equation 2 हो, number of arbitrary constant 2 होगा. order of differential equation 1 हो और number of arbitrary constant भी 1 होगा. So conclusion is this: order of differential equation is equal to number of general solution. So that is number of arbitrary constant in any general solution. So on particular solution में number of arbitrary constant क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. So once again यहाँ पे नोट दे रही हूँ. So number of arbitrary constant, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है बच्चे. नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन एनी जनरल सॉल्यूशन is equal to order of differential equation or equal to order of differential equation. Now number 2, in any particular solution का PS लिखते हैं बेटा, that is in any particular solution of differential equation, any particular solution of differential equation, number of arbitrary constant is 0. number of arbitrary, ये भी आता है आपका क्वेश्चन. number of arbitrary constants
कांस्टेंट इज 0. आर यू क्लियर बच्चे? क्या बोला कंक्लूजन? सो Yes, ma'am. यस, राइट डाउन वेरी क्लियरली, राइट डाउन, समझ के लिखो. सो क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल, और उसी का एग्जाम्पल दिया, सेपरेट कैसे करते हैं, कैसे जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, और व्हाट इज लिंक बिटवीन जनरल सॉल्यूशन एंड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ये 1 मार्क क्वेश्चन है जो नोट दिया, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये सब समझ आ गया तो आगे इट इज सो इजी. नो डाउट. देन आई विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज. Okay, ma'am. Ma'am, done. Yes, beta. Everybody have done, बच्चे? Yes, ma'am, done. Yes. Yes, ma'am. Yes. Now, बेटा take exercise 9.4, 9.1 के बाद 9.2, 9.3. Formation and general solution is not in syllabus this time. So we are taking directly variable separate. But you should know what is general solution, what is particular solution, and what is link between given differential equation and general solution. These are all common idea, general idea that you should know about it for doing this exercise. Now see बेटा, हमेशा क्या होता है differential equation, solve differential. Solve मतलब we have to find value of x or y. Okay, so generally we have to find value of y here. So now वेरिएबल सेपरेबल अब इंटीग्रेट करूंगी तभी तो आपका y का वैल्यू आएगा बेटा. फॉर दिस फर्स्ट यू हैव टू डू सेपरेशन. बच्चे वॉट एवर यू हैव सीन इन इंटीग्रेशन, जो कौन सी बच्चे ने इंटीग्रेशन ठीक से सुना नहीं वो भी सीख सकते हैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू. ढंग से सुन लेना. आई हैव डन सेपरेशन, सो देन आफ्टर दैट आई एम टेकिंग इंटीग्रेशन. हाउ कैन यू डू इंटीग्रेशन बच्चे? मैम इसको हम कन्वर्जन कर सकते हैं मैम. क्या मतलब जैसे tan स्क्वायर x/2 लिखते हैं मैम इसको. नहीं क्यों बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स का यू हैव फॉर्मूला बच्चे. यस मैम, तो 2 sin स्क्वायर x/2 और नीचे cos 2 स्क्वायर x/2. यस बच्चे, वही करना वही है आपको, और कोई तरीके क्या रेशनलाइज कर सकते हैं. अदरवाइज आपको जनरल मेथड समझा रखे हो. डिनोमिनेटर में 1 + or - sin x cos x sec x + or - tan x आ गया. डू रेशनलाइज सो दैट यू गेट आइडेंटिटी, दैट इज ऑफ योर चॉइस. वो आपका जनरल. और हियर यहाँ पे सीधे फॉर्मूला यूज इट. सो इंटीग्रल वी विल गेट tan स्क्वायर x/2. एनीहाउ tan स्क्वायर का क्या है बच्चे?
यस मैम, वही कह रहा था मैम, सीधा tan स्क्वायर x बाई 2, मतलब वो स्टेप तो करूंगा मैं, वो मैं एक बता रहा था कि वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यही कह रहा था मैं। tan स्क्वायर x बाई 2, बाकी कोई और बच्चे Yes, ma'am. tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन। हाँ मैम बच्चे, इसको 6 स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिख देंगे तो उससे हमारा आ जाएगा। yes बेटा so many students are there, please give me answer बच्चे। जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे ना, आप बोलना नहीं शुरू करोगे, जब तक बोल ही नहीं पाओगे फिर ऐसे हेजिटेशन रहते रहेगा। यू स्पीक आउट तभी आ पाएगा, ऐसे नहीं है बेटा आप हेजिटेट करके बैठे रहोगे कोई और आंसर दे। डोंट वेट फॉर एनीवन, यू शुड गिव अन आंसर। सो sec स्क्वायर x बाई 2 आएगा आपका tan x बाई 2, एंड आई टोल्ड यू जो x बाई 2 है उसका डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिखोगे, अदरवाइज कंप्लीटली मिस्टेक हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 2 tan x बाई 2 minus x plus c. This is your general solution. Okay, fine. In case initial value given हो, then only we will find out general particular solution, otherwise नहीं है बेटा। wherever necessary I will do it, otherwise I will give you homework. Let me explain under root of 4 minus y square. Now variable separable, so collect all y and dy one side, so y upon under root of 2 का square minus y square, that is equal to dx. take integration both side. ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा? साइन इनवर्स x मतलब y, साइन इनवर्स y बाई 2 आ जाएगा। हाँ, y बाई 2, साइन इनवर्स x बाई a, सो साइन Yes, इनवर्स ma'am. y बाई 2 इक्वल टू x प्लस c। आप कंप्लीट करो। ओके, सो नाउ लेट मी Yes, डू ma'am. सम क्वेश्चंस, वो मैं आपको समझाऊंगी बट यू हैव टू डू होमवर्क बच्चे। सो dy बाई dx से प्लस y इक्वल टू 1। प्लीज बच्चे कोई और बच्चे इन्वॉल्व हो जाए, स्टार्ट स्पीक again I am requesting, even then you are not speaking। 1 minus 1, so anyhow now variable is separable, so 1 minus y that is equal to dx। now take it integration, so इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चे? मैम माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस y इक्वल्स टू x प्लस c। log 1 minus 1 किसको y मानोगे उसको डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिखोगे -1 इक्वल टू x प्लस c। सो कंप्लीशन आप दे देना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, मैं जस्ट सेपरेट करके बता रही हूँ बेटा। sec स्क्वायर x इंटू tan y into dx and then plus sec square y into tan x into dy equal to 0। सबसे पहले कलेक्ट करो x y dy एक साइड लेकर आने की कोशिश करो, dx ऊपर ही रहेगा dy, सो इसको सबसे पहले ये स्टेप बना लो आप। tan y into dx that is equal to minus sec square y into tan x into dy। अब dy dx तो ऊपर रहेगा, सो x टर्म को इधर से लेकर आओ, y टर्म को उधर से लेकर जाओ। सो sec स्क्वायर x अपॉन tan x इंटू की क्या हो जाएगा tan x इंटू dx दैट्स इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y इंटू dy द होल अपॉन क्या हो जाएगा होल अपॉन tan y। नाउ टेक इट इंटीग्रेशन बोथ साइड, सो tan x का इंटीग्रेशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? tan x का 6 स्क्वायर x स्क्वायर, सो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो वी कैन राइट इसका आंसर क्या लिख सकती हूँ? log ऑफ डिनोमिनेटर और log ऑफ tan x। ये एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ बेटा। सो ये इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस log tan y। इन केस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या ब्यूटी होता है बेटा, जब थ्रोट आपका log में आ रहा है ना, जो कांस्टेंट है वो भी log में कर दियो, सो दैट क्या हो जाएगा log tan x। इसका है ना समटाइम्स क्योंकि प्रूव दैट में भी आता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू log c। सो log m into n का फॉर्मूला लिखोगे तो log tan x into tan y दैट इज इक्वल टू log c। सो log ही कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग लगा के हो जाएगा इक्वल टू c। दिस इज योर फाइनल आंसर। इन केस y इक्वल टू समथिंग चाहिए तो कर सकते हो। इनिशियल वैल्यू गिवन हो, सब्स्टिट्यूट करके c का वैल्यू निकालो, वो आपका चॉइस। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करने पड़ेगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? ex प्लस e पावर माइनस एक्स and then minus e power x minus e power minus x into this is here is dy बच्चे, dy यहाँ पे dx equal to 0। वही सेपरेट करोगे बेटा। सो ex प्लस e पावर माइनस एक्स दो स्टेप करके दिखा रही हूँ। सो उसके बाद आप भी कर सकते हो माइनस e पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ कीप इट dy दिस साइड, x टर्म सारे एक साइड लेकर जाओ, e पावर माइनस एक्स द होल अपॉन e पावर एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बेटा अभी के अलावा कोई और बच्चे आंसर दे प्लीज।
इसका क्या डिफरेंशिएशन? हम एक्चुअली ऊपर dt बन गया एंड नीचे वो हमारा t बन जाएगा। हाँ t बन जाएगा, अदरवाइज इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log of c दे रिजल्ट लिखो, dy इक्वल टू log of e पावर x पावर माइनस x प्लस c। थ्रोट log आ गया तब log c करो, अदरवाइज आप छोड़ देना, सिंपल। ओके क्लियर? स्टार्ट राइट बच्चे। ओके मैम। हाँ स्टार्ट राइट। बेटा मैं बार बार सभी को बोल रही हूँ, बच्चे आप लोग सभी बोलो, आंसर दो, एक ही बच्चा डिपेंड ना करे। आप बार बार बोल रही हो, आप नहीं बात करोगे, कभी बात ही नहीं करोगे, ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही स्कूल लाइफ मिस हो जाएगा। एटलीस्ट इंटरेक्शन तो करो। Yes, I'm done. Yes. बेटा everybody have done? मैम ये थर्ड रो मत रब करना। ठीक है बेटा। Yes. Yes, Bachchu, if you have done, then only I can move. Yes, beta, have you done? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now let us see, beta. Another question. I'm taking question number 6. Question number 6 में क्या given है? dy by dx. So do variable separable. So dy upon you have to do. Just let me complete it. Then you can do it. So 1 plus x square e into dx. Take it integration. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? What is the integration? Tan inverse y. Tan inverse y. Tan inverse y. सिंपल इंटीग्रेशन ax हो जाएगा x Yes, ma'am. 3 plus c x cube by 3. हाँ। So Yes, now ma'am. next question number 7 देखो, ये भी होमवर्क में करोगे। Just to let me explain dx and then minus x into dy equal to 0। सबसे पहले LHS RHS में लेकर जाओ so that you can identify क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। x into ये हो जाएगा dy। Now वेरिएबल सेपरेबल y टर्म्स एक साइड रखो, x टर्म्स एक साइड लेके जाओ। So dx upon x is equal to dy upon क्या हो जाएगा y log y।
ओके फाइन, नाउ टेक इट इंटीग्रेशन, ये तो आपका log x हो जाएगा. व्हाट यू हैव टू डू यस मैम, यहाँ पे क्या log y हो जाएगा मैम. बेसिकली dy by y इज योर 1 by y आ गया ना मैम, तो वो log y का डिफरेंशियल हो जाएगा, तो log y को t डालेंगे और आ जाएगा. log y इक्वल टू यहाँ पे t सब्स्टिट्यूशन देना. अदरवाइज डायरेक्ट लिखना चाहते हो log of log y, log of इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? यस मैम, इसका डिफरेंशिएशन पूरा ये रहा. सो दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज log of log y. अदरवाइज आपका डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा, log y इक्वल टू t देके कंप्लीट कर लेना इसको. सो दिस इज Okay, ma'am. ऑल्सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? x पावर वो x पावर 5 है ना, x पावर 5 into dy by dx is equal to minus y power 5. This is simple variable separable बेटा, so nothing is difficult. Minus dx upon x power 5. ये तो सिंपल इंटीग्रेशन y पावर 5 ऊपर लेके जाओ, माइनस 5 y पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1. सेम x पावर माइनस 5 ऊपर जाएगा, x पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, दैट इज माइनस 4 आ जाए जनरली आपके पास. ठीक है ना? तो प्लस सी करो, नहीं है तो माइनस सी करके थ्रू माइनस को कैंसिल करो, वो आपका चॉइस है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में dy इक्वल टू साइन इनवर्स x इनटू अपॉन dx दे रखा है. नाउ वेरिएबल सेपरेबल करूं, सो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इनटू dx. नाउ टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड. ये तो y हो जाएगा. व्हाट यू हाउ टू डू द साइड? ये बाय पार्ट्स होगा मैम. यस एग्जैक्टली बेटा, बाय पार्ट्स. दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x. बच्चे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, बेशक आप पूछो बेटा, जो भी कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ और किसी के लिए भी नहीं है. सो आपको नहीं समझ आ रहा हो तो मैं जो टाइम डिवोट कर रही हूँ उसका कोई फायदा नहीं है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज अगेन आई एम सेइंग आस्क मी. सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल differentiation of first function 1 upon under root of 1 minus x square into integral of second function. It is so simple बेटा. आप ठीक से अब बिना डर के क्वेश्चन को स्टार्ट करो, आराम से आ जाएगा. अब इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन देना चाहते हो दे दो, इक्वल टू टी स्क्वायर. डिफरेंशिएट करोगे माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी. So x into dx is equal to you will get it minus t into dt. Now y equal to the final answer x sin inverse x. ये तो ऑलरेडी हो चुका है. माइनस इंटीग्रल, सो ये हो जाएगा माइनस dt, सो प्लस हो जाएगा बच्चे. सो ये हो जाएगा t dt अपॉन अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा t स्क्वायर. इट विल बी कैंसल. सो y इक्वल टू x sin inverse x एंड देन प्लस t प्लस c. फाइनली t की जहाँ से वैल्यू ऐड करोगे सो दैट इज इक्वल टू x sin inverse x प्लस t की जहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इट इज सो सिंपल. ये रिकॉग्नाइज करना है बेटा. हाँ, यहाँ पे बाई पार्ट्स अप्लाई करना है और बाई पार्ट्स फॉर्मूला को थोड़ा बहुत याद करना है और कुछ भी नहीं है. बस सिर्फ बाई पार्ट्स को याद कराने के लिए क्वेश्चन को करवाया और कुछ नहीं. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 10th क्वेश्चन. लेट मी बिगिन, उसके बाद आप कंप्लीट करो. tan y इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस ई पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0. सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, उसके बाद सोचते हैं जब सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल. वो तो आगे सिखाऊंगी क्या करना क्या है. 1 माइनस ई एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई. नाउ कीप डी वाई न्यूमरेटर में ही रखना है, सो बाकी टर्म को डिनोमिनेटर में लेकर जाओ. ई एक्स अपॉन ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चे, सो दैट इज इक्वल टू इंटू डी एक्स एंड देन माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan वाई इंटू. हाँ बेटा, जो उधर से माइनस उधर लेके जा सकते हैं दूसरी साइड. हाँ आपका चॉइस है बेटा, आपका तो वो ले जाना मैम, वो सीधा सीधा ऊपर वो dt बन जाएगा मैम नीचे वाले का. कौन सा बच्चा? अच्छा ये वाला माइनस को इधर वहाँ लेकर जाओ बेटा. Yes, हाँ इसका dt हो जाएगा तो बिल्कुल आप कर सकते हैं. यस मैम. सो log ऑफ दिस आ जाएगा कि बस आपका चॉइस जैसे भी करो. Yes, ma'am. ये log ऑफ समथिंग हो जाएगा. माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल करो, नहीं है तो थ्रूट वो भी log में करके देखो. ये हो जाएगा माइनस log ऑफ 1 माइनस ई पावर एक्स. ये हो जाएगा माइनस लॉग tan yes, और माइनस लॉग सी कर दो, वो आपका चॉइस है बेटा. ये yes, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे भी करूँ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो 1 प्लस ई पावर एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा c इंटू tan वाई. लॉग m इंटू n का फॉर्मूला, नहीं है तो yes, tan वाई दैट इज इक्वल टू 1 प्लस
इसको भी सिंप्लीफाई करना क्या कर सकते हो, मतलब इन केस उसमें ट्रू दैट आ गया, इसी तरह आ सकता है बेटा e पावर x अपॉन c देन y इक्वल टू, दिस इज योर एग्जैक्ट, क्योंकि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वी हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ y और x, लाइक दिस वी हाउ टू डू। इन केस dy by dx हो देन y का वैल्यू निकालते हैं, dx by dy हो देन x का वैल्यू निकालते हैं, ये टारगेट होता है क्वेश्चन में। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। यस बेटा, राइट फास्ट बच्चे। वन मोर क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 or 2 क्वेश्चंस। मैम डन। Now just Yes, I'm done. अभी तक हमने कितने भी देखा था, वो जनरल सॉल्यूशन था बेटा। आपके पास सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर है, एक ही ऑर्डर है, सो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, सो सिर्फ हमने जनरल सॉल्यूशन देखा। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कुछ क्वेश्चन है, सो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं आज, तो बाकी कल कंप्लीट कर लेते हैं इसको। dy by dx दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x एंड देन y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू गिवन है, मतलब इनिशियली ये जो कर्व है ओरिजिनल कर्व है वो इसी पॉइंट के थ्रू पास करेंगे, ये बता रखे हैं। नाउ लेट अस सी बेटा हियर, सो आपको कैसे इंटीग्रेशन, बेसिक यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन में, ऑलरेडी आई टोल्ड यू इंटीग्रेशन आपको थोड़ा बहुत करा होना चाहिए इसी टॉपिक के लिए, दैट्स आई टोल्ड यू। नाउ एनी हाउ वेरिएबल सेपरेबल करूँ बच्चे, dy इक्वल टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x द होल अपॉन, इसको x क्यूब प्लस, चलो अभी लिख लेती हूँ, प्लस x प्लस 1 इंटू dx, देन टेक इट इंटीग्रेशन बोथ साइड। सो अब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा इजीली, अब ये भी तो इंटीग्रेट करना है, क्या करोगे बच्चे इसको इंटीग्रेट करने के लिए? मैम पहले ऊपर से x कॉमन लेंगे एंड क्यों x कॉमन लेगा? जो नीचे है उसमें से भी x प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो इसमें से x कॉमन लेगा तो ऊपर तो 2x प्लस 1 आ जाएगा बच्चे, पार्शियल ले जाओ, ठीक है मैम। हाँ अब समझ है ओके मैम। हाँ, सो क्वेश्चन को पहले, तभी मैं बोलती हूँ सबसे पहले क्वेश्चन को सेपरेट करो, फिर आप सोचो क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। सो क्योंकि इंटीग्रेशन तो आपको बेसिक पता है, तो ऑटोमेटिकली जब सेपरेट करोगे आप में आपको पता चल जाएगा। ऑफकोर्स पार्शियल एक क्वेश्चन मैं पूरा लेकर जा रही हूँ बेटा इसमें, सो 2x स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इनिशियल वैल्यू क्या होता है, इंटू x प्लस 1, एक बार पार्शियल भी रिवीजन हो जाएगा, a हो जाएगा ax प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, आप भी कर सकते हैं साथ साथ x स्क्वायर प्लस 1, यस c अपॉन x प्लस 1। अभी इसी को इंटीग्रेट करेंगे हम a b c वैल्यू निकालने के बाद, उसके लिए सो 2x स्क्वायर प्लस x दैट इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, ax प्लस b, ये इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1 एंड देन प्लस c इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। सो अब ये भी c का वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर कर देते हैं, सो इसको भी ओपन करके फिर निकालो, कोई मिस्टेक मत कर देना, x स्क्वायर प्लस x
प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, सो दैट आपका कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बच्चों। नाउ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट कंपेयर करूंगी 2, यहाँ पे a प्लस सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एक्स का कंपेयर करूँ दोनों साइड, हियर 1, हियर a प्लस b, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। कांस्टेंट कंपेयर करूँ दोनों साइड 0, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे a नहीं है b प्लस सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब सॉल्विंग 1 2 3 हम तीनों को सॉल्व करना है, 1, 2, 3। बेशक बच्चे यहाँ से c का वैल्यू निकालो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो b का वैल्यू आ जाएगा। सो b का वैल्यू उठा के आपका चॉइस, इक्वेशन को सॉल्व करना है करो, नहीं है वैनिशिंग मेथड से जाना चाहते हो बेशक चले जाओ। सो आप x इज इक्वल टू -1 रखो, -1 रखने से x इज इक्वल टू -1 रखो, वैनिशिंग में जा रही है बच्चे। सो ये हो जाएगा -1 रखोगे, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा +1 - 1 0 हो जाएगा, b टर्म 0 हो जाएगा, c टर्म आ जाएगा 2c, दैट इज c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। c का वैल्यू 1/2 आ गया तो इक्वेशन 1 में रखो, 1 इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 - 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/2। सो a का वैल्यू आ गया 3/2, इक्वेशन 2 में रख लो। सो 2 में रखोगे इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इसमें नहीं है तो 3 में रख लो, 3 इजी हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0 दे रखा है तो 3 में रखोगे, c का वैल्यू b का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2। इजीली हर कोई वैल्यू आपके पास इमीडिएट आ गया। सॉल्विंग 1 2 3 तो ये इक्वल टू, मैंने बोला कांस्टेंट में गलत कर दिया ना बेटा, फिर आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। और b वैल्यू हो जाएगा -1/2 और c वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब बस यहाँ पे इंटीग्रेट करो। सो y इक्वल टू, आई एम डूइंग टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, सो इंटीग्रल इंस्टेड ऑफ a 3/2x प्लस b इज -1/2 द होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 into dx plus integral 1/2 into dx upon x plus 1. You know how to do integration. So y equal to 3/2 into integral x into dx upon 1 plus x square, एक टर्म आ जाएगा। So -1/2 into integral dx upon x square plus 1, एक टर्म हो जाएगा, प्लस 1/2 into integral dx upon x plus 1. So of course y equal to, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है बट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तभी आएगा, ये 3/2 है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ सो दैट इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3/4 log of 1 plus x square, और ये हो जाएगा क्या है इसका फॉर्मूला बच्चे, ये किसका इंटीग्रेशन है बेटा, tan inverse x, यस एग्जैक्टली tan inverse x, बेटा tan inverse x प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c कर देना। अब क्या दे रखा है, इट इज पासिंग थ्रू, कहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या दे रखा है, अदरवाइज आज पर गिवन लिख दो, गिवन दैट लिख दो, y इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0। अब इसी जनरल सॉल्यूशन के अंदर वैल्यू रखो, y का वैल्यू 1 x का वैल्यू 0 रखोगे, सो y 1 हो जाएगा 3/4 इंटू log 1 हो जाएगा बेटा, log 1 0 होगा, फिर भी मुझे लेट मी एक्सप्लेन, यस tan इनवर्स 0 प्लस अगेन 1/2 log ये भी 1 हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, प्लस c, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, c का वैल्यू क्या आ रहा है, देयरफॉर पर्टिकुलर। सो इसी तरह हम इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। बच्चे समझ आए बेटा? यस मैम। यस बेटा, स्टार्ट राइट, टाइम होगा तो ठीक, नहीं है तो भेज दूंगी। स्टार्ट राइट बच्चे, एवरीबडी प्लीज। So this is particular solution.